Assalamu alaikum, dear students. This is Sir Kaleem Siddiqui, your English teacher. Welcome to you in first year class. Students, when we are in first year, the pattern of paper is completely changed. In class 9, in class 10, you people appeared in 75 marks paper. But when you are in first year, you have 100 marks paper. And your paper is divided into three sections. When we understand the pattern of paper, it is easy for us to prepare ourselves for the examination. Let me tell you about the pattern first. Dear students, total marks 100. 100 marks are divided into three sections. Section A. This section A. You guys know, section A is always MCQs. You have MCQs of 20 marks. But you do not have MCQs like class 10, because in class 10 you had MCQs of grammar. In first year you do not have MCQs of grammar, but you will be given MCQs from your poem, text and 2-1 act play. Means you have got 3 books. Three books. Let me show you the books. Intermediate English Book 1, the book of prose. Selections from English verses. First year and second year. The same book will be used in second year as well. 2-1 act plays. It has 2 plays. Let me tell you again. In first year, our paper consists of 100 marks. This 100 marks paper is divided into 3 sections. Section A, MCQs. MCQs carry 20 marks. After MCQs, we have section B. This section B is divided into four subsections. Your section B is divided into 4 subsections and it carries 50 marks. Subsection 1, subsection 1. Questions from prose. Question from prose. You know, prose book. 1, 2, 3, 4. 4 questions will be given from your prose book. Okay, and how to attempt? This is very interesting. Subsection 2
is divided into subsection 2 is divided into 4 questions. Miss how? Subsection 1 4 questions from prose, subsection 2 questions from poems, means selections from English verses. This is your book, selections from English verses, 4 questions. So now we have 5, 6, 7, 8. 4 questions plus 4 questions, total 8 questions. Let's move towards subsection 3. Subsection 3. Subsection 3, questions from 2, 1, act 2, 1 act plays. This is the book. Okay. Again 4 questions. Now we have 12 questions. Last one. Subsection 4. This is your subsection 4, and this is your grammar section. In grammar, you will be given errors in articles, prepositions, verbs, adjective. You will have to remove errors from the articles, prepositions, verbs and adjectives. This is little bit different to you. And we have now questions like question number 13, question 14 and question number 15. Which type of sentences will be given and questions will be given to you? Let me tell you. For example, he is go to school. You have to find out error from this sentence and you have to correct. Let me add something. Now, number 2. Acha, in this first question, you will be given 5 sentences. You will be given 5 incorrect sentences and you will be correcting them. Question number 14, which is the second last question of section B.
pairs of words. Pairs of words will be given to you, okay? You will be using them in your own sentences. Three pairs means 6 sentences. You know pairs of words in easy wording, synonyms, homophones. Last questions. Give meanings of the following words or phrases. This is your section B. Let me explain again. You might have missed something. Let me repeat my lecture. Dear students, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब आप क्लास 10 में होते हैं, क्लास 9 में होते हैं, तो आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है. आप आते हैं फर्स्ट ईयर में तो इसमें डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अब आपकी क्लास आगे बढ़ गई है. जब क्लास आगे बढ़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो फिर अटेंशन भी बढ़ जाती है. पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 25 मार्क्स हमारे पास ऐड हो गए, यानी कि अब ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया है. पेपर किस तरह से दिया जाएगा? सेम 3 सेक्शंस हैं हमारे पास. सेक्शन ए आ गया आपका एमसीक्यूज, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, पहले भी बताया था, अब ये हमारे रिपीटेशन है. 20 मार्क्स होंगे इसमें. एमसीक्यूज आपके ग्रामर के नहीं होंगे जिस तरह क्लास 10 में था. इसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे. आपकी पोएम्स में से पोएट का नाम पूछ लिया है आपसे, उसका बर्थ ईयर पूछ लिया है, या वो पोएम कब लिखी गई है ये आपसे पूछ लिया जाता है. आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. यू विल बी सिलेक्टिंग वन ऑफ देम. इसी तरह से आपको वो कोई वर्ड दे सकते हैं और उस वर्ड के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पोएम का है. आपको करेक्ट आंसर देना है. इसी तरह से ऑथर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई बैंक अकाउंट इज रिटन बाय डैश. अब 4 ऑप्शंस हैं, आप उसमें से चूज कर लेंगे एक करेक्ट ऑप्शन. इस तरह से आपके 20 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज. सेक्शन बी में हम आ गए हैं. सेक्शन बी को 4 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. इसके 50 मार्क्स हैं. इसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. अच्छा, अब मामला ये है कि जब ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स है तो ये तो 4 + 4 + 4 + 3, ये तो 15 क्वेश्चन हो गए. तो मैच नहीं हो रहा. बिल्कुल ठीक, आपके जहन में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे हो गया. असल में यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके आंसर 10 पार्ट क्वेश्चन. जब आंसर आप 10 पार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिट दी गई है यहाँ पे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर. 10 पार्ट क्वेश्चन हो गया, आप अपनी मर्जी से 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ होता है you can attempt 2 questions from each subsection and 3 questions from each subsection, but you cannot attempt 1 question or 4 questions. यानी कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है. सब सेक्शन 2 में मैं आऊँगा. मैंने देखा यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से मुझको ये 7 और ये आ गया 6. 2 यहाँ से मैंने कर लिए, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से कर लिए. अब मेरे पास हैं 6 क्वेश्चंस. मैं क्या करूँ? मैंने देखा सब सेक्शन 3 में मुझको 3 क्वेश्चंस आते हैं. मैंने कहा ओके, वेल एंड गुड. यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चंस कर लिए. तो अब आपका क्या बन गया? 2 + 2 4 + 3 7 हो गया.
3 क्वेश्चंस बचे, आपने 3 क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन से कर लिए, तो आपके 10 पार्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलें कि मैं ग्रामर में से 3 क्वेश्चंस नहीं कर सकता, मैं कुछ और चॉइस करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपकी चॉइस है। सब सेक्शन 1 से मुझको अगर 3 क्वेश्चंस आते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस कर सकता हूं। सब सेक्शन 2 से मुझे 3 क्वेश्चंस आते हैं, मैं 3 क्वेश्चंस कर सकता हूं। 3 + 3 6 हो गए आपके। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, तो ये 8 हो गए। जब मैं सब सेक्शन 3 से भी 2 क्वेश्चंस कर लूंगा, अब मेरे पास बचा है सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 से मैंने 2 क्वेश्चंस कर लिए, ये मेरे पास चॉइस है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छी तरह से सुन ले इसको, क्योंकि इसी में फिर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे अटेम्प्ट करें। व्हेन यू नो हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। फिर सुन ले, यहां से मैंने 3 क्वेश्चंस किए, यहां से मैंने 3 क्वेश्चंस किए, सब सेक्शन 3 में मैं आया, यहां से मैंने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और सब सेक्शन 4 से भी मैंने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो मेरे कंप्लीट 10 पार्ट क्वेश्चंस हो गए। ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि एक सब सेक्शन से 3 करूं, दूसरे सब सेक्शन से मैं 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, देन सब सेक्शन 3 से मैं 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, सब सेक्शन 4 से मैं 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं। ये गेम मैं खेल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 4 क्वेश्चंस सब सेक्शन 1 से करूं, 4 क्वेश्चंस मैं सब सेक्शन 2 से करूं, 2 क्वेश्चंस मैं सब सेक्शन 3 से करूं, कि यार सब सेक्शन 4 को मैं स्किप कर देता हूं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये अपने जहन में रखिएगा। आप लोग इसकी पिक ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। आई थिंक यू पीपल शुड टेक अ पिक। ओके, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes फॉर दिस, देन आई कंटिन्यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। I hope you people must have taken the picture of this. ये हो गया आपका सेक्शन A, सेक्शन B. It means we have covered up 70 marks. अब रह गए 30 marks. 30 marks definitely. Now we have to move towards section C. Section C देखते हैं. I'm going to erase this. Section C. Section C contains 3 questions. All these 3 questions are compulsory. Each question carries 10 marks. Total marks 30 marks. All right. Question number 3. Okay. Now we have to write an essay. Write an essay of about 120 words. Okay. 10 marks. But we do not have application. देखिए, क्लास 10 में, क्लास 9 में हमारे पास या तो हम लेटर लिखते थे या एप्लीकेशन लिखते थे, ठीक है। यहाँ ऐसे राइटिंग के साथ एक हमें चॉइस दी गई है, वो हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी राइट एन ऐसे और स्टोरी। वी कैन राइट डाउन अ स्टोरी. You will be given some topics as well. For example, honesty, is
the best policy. Another topic, for example, greed is a curse. Both of the topics are common to you. अच्छा, आप इसमें अपनी मर्जी से कोई स्टोरी पैचअप नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपने कौन सी स्टोरी लिखना है, वो जो हमारे पास आम तौर पे ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक्स के अंदर स्टोरीज मौजूद होती हैं, वही हमारे स्टैंडर्ड है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द स्टोरी ऑफ वुडकटर, यू गाइज रिमेंबर। Greed is a curse. We have many stories on this topic, like the story of a greedy dog, like that. ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, यू हैव टू राइट डाउन अ लेटर। अब इसमें एप्लीकेशन नहीं है, आप यही लिखेंगे। ये जो लेटर आपका होगा, ये आपको एडिटर का नाम लिखना होगा, उसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रीट क्राइम्स हो गए, और वो सिमिलर टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो क्लास 10 में आप देख चुके हैं। इसके भी आपके आ गए 10 मार्क्स। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स। Five sentences will be given to you. You will be translating them. Each sentence carries 2 marks. Okay, 2 multiplied by 5 is equal to 10 marks. यहाँ आपका पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है 100 मार्क्स का। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? या आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो इसको आपने जहन में रखना है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, दिस बुक विल बी यूज्ड। फर्स्ट वी शैल प्रिपेयर अवरसेल्व्स फॉर पोएम्स। ओके, हम फर्स्ट पोएम जो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक। द टॉपिक इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री। हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास अंडर द ग्रीन वुड ट्री के टॉपिक से, विच इज योर फर्स्ट पोएम इन फर्स्ट ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। डू अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।